Hello, my dear students. This is Manglani Komal, and we are going to learn science. We have already started our chapter number 1, that is nutrition in plants. This is the second part of that video of that same chapter. We have discussed in the previous video about photosynthesis and requirements of photosynthesis, correct? So, before going further in that topic, I just want to show you one activity. This activity is to demonstrate that light is necessary for photosynthesis. So, have a look on this activity and listen carefully. To demonstrate that light is necessary for photosynthesis. Requirements: potted plant, petri dish, boiling tube, alcohol 70%, iodine solution, Bunsen burner, forceps, beaker, water, dropper, black paper. Procedure: take a healthy potted plant and place it in dark for about 72 hours so that the leaves become free from starch. After 72 hours, select a leaf on the plant and cover a portion of it on both sides with black paper. Keep the potted plant with the covered leaf in sunlight for a few hours. After a few hours, detach the covered leaf from the plant and remove the black papers. Boil the leaf in water for a few minutes. Now boil the leaf in alcohol in a water bath till it becomes dull white due to the removal of chlorophyll. Wash the leaf with water and add iodine solution. Observation: the portion of leaf which was covered does not change color, whereas the portion which was uncovered turns blue-black. Inference and conclusion: the portion of leaf which was not covered received all the factors necessary for photosynthesis. Therefore, that part could only photosynthesize, whereas the one which was covered could not manufacture food. The presence of starch gave the positive test with iodine, that is, turned to blue-black color. Photosynthesis is the process of manufacturing of food by the green parts of the plant, especially the leaves, in the presence of sunlight and chlorophyll, with the help of carbon dioxide and water. So, इस एक्टिविटी में हम ये देख सकते हैं कि लीफ का वो वाला पोर्शन जो कि कवर्ड नहीं था, उसको सारे के सारे जो नेसेसरी फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो मिले. उसकी फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट हुई, तो वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाया और स्टार्च बना पाया. ठीक है, लेकिन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ वो कौन सा पोर्शन था? जो कि हमने कवर करके रखा था. क्योंकि हमने उसे कवर किया था तो उसे सनलाइट नहीं मिली. बाकी के फैक्टर्स मिले लेकिन सनलाइट नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ. अब जब आयोडीन हम पुट करते हैं, ठीक है, आयोडीन कभी भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा.
क्योंकि जो पार्ट कवर्ड नहीं था वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ और स्टार्च प्रेजेंट था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे फूड मैन्युफैक्चर हुआ और आयोडीन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। लेकिन जो पार्ट कवर्ड था वो कोई चेंजेस नहीं दिखाएगा कलर में। क्यों? क्योंकि वहां पे फूड मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। किसकी वजह से नहीं हो पाया? सनलाइट ना मिलने के कारण। ये एक्टिविटी हमें ये शो करती है कि सनलाइट जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेट अस मूव फर्दर। फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है? Why photosynthesis is necessary? क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको अपना खुद का खाना बनाने के लिए हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बिना प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकेंगे, और अगर प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकेंगे, या फिर हम ऐसा बोले फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो प्लांट्स रहेंगे ही नहीं, राइट? क्योंकि बिना फूड के प्लांट्स सरवाइव कैसे करेंगे? इसीलिए पहला रीजन है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स के लिए बहुत ही जरूरी है खुद का खाना प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा, क्यों फोटोसिंथेसिस जरूरी है? क्योंकि जो सारे एनिमल्स हैं वर्ल्ड में, जितने भी एनिमल्स हैं, वो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पर। तो प्लांट्स जो है वो सिर्फ ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी के एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन सारे एनिमल्स तो प्लांट्स नहीं खाते हैं। फिर वो प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंड हुए? जैसे कि काऊ प्लांट खाती है, हम ये बिलीव कर सकते हैं कि वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है, बट लायन तो नहीं खाता है, फिर भी वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। कैसे? जैसे कि काऊ जो है वो खा रही है प्लांट को, ठीक है, इट इज हर्बीवोरस। जो डियर है वो प्लांट को खा रहा है, दैट इज ऑल्सो हर्बीवोरस। लायन जो है वो डियर को खा जाता है, इट इज कार्निवोरस। बट अगर डियर जो है उसको प्लांट नहीं मिलेगा तो डियर नहीं रहेगा, डियर नहीं रहेगा तो लायन नहीं रहेगा। इनडायरेक्टली लायन डिपेंडेंट है। इस तरीके से सारे एनिमल्स, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए। तो ये था दूसरा रीजन, इंपॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस का। थर्ड है ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो उसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है और ग्लूकोज रिलीज होता है। ग्लूकोज जो है वो प्लांट यूज करता है और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो लेकिन ऐसा है कि ऑक्सीजन जो है वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही है, और वो ऑक्सीजन उनको मिलेगा कैसे? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है उसको बैलेंस करता है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी अर्थ पे, बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए अर्थ पे रहना। इसके बाद हम देखेंगे प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट तो प्रोड्यूस करते हैं, हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस करके प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ग्लूकोज, हमने देखा था, राइट। लेकिन प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरे कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनको भी प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है। अब प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन भी चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे नीचे आपको दो स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो है ग्लूकोज का। इसमें आप देख सकते हैं C यानी कि कार्बन, O यानी कि ऑक्सीजन, H यानी कि हाइड्रोजन।
तो इसमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उससे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। और प्लांट जो है वो प्रोटीन भी प्रोड्यूस करेगा। अब प्रोटीन्स के लिए उसको नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है वो ऐसा एलिमेंट होता है जो कि प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही प्लांट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ना ही एनिमल्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उसको उसके सॉल्यूबल फॉर्म में लाने के बाद ही एनिमल्स या फिर प्लांट्स उसे यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा? तो एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिसके थ्रू आप ये समझ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगी कि क्या हो रहा है वीडियो में। ओके, लेट अस हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट पास जाता है, बट प्लांट उसे आने नहीं दे रहा है, फेंक दे रहा है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर प्लांट्स यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? कैसे यूज करेंगे? लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं रूट्स में के जो प्लांट्स में प्रोड्यूस रूट नोड्यूल में रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या करेंगे? और वो प्लांट नाइट्रोजन की वजह से भी नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। अब सॉइल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमल्स को भी नाइट्रोजन मिल जाता है, प्रोटीन्स मिल जाते हैं। लेट्स मूव फर्दर। तो जैसा कि हमने देखा, प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के। तो ये नाइट्रोजन जो है वो कौन कन्वर्ट करेगा? राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो उसको सिंपल वाटर के सॉल्यूबल हो सके ऐसे नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा और सॉइल में रिलीज कर देगा।
फिर सॉइल में से प्लांट जो है उसको अब्जॉर्ब करेगा। दूसरी बात ये होती है, आपने कई बार देखा होगा कि हम प्लांट में खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स, खाद, जो कि नाइट्रोजन रिच होती है। अब नाइट्रोजन रिच होती है तो क्या होता है, ये खाद जो है वो सॉइल में जाएगी और प्लांट जो है वो इन फर्टिलाइजर्स के थ्रू नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब करता है और इस तरीके से उसकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है और वो प्रोटीन्स बना सकता है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, ये क्या करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, जो कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग उसने बनाया प्लांट ने, उसको ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसको स्टोर करते हैं अपने सीड्स में। तो आपने सुना होगा सनफ्लावर ऑयल, सुना है? हाँ, तो ये सनफ्लावर ऑयल कैसे, सनफ्लावर में से सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं उनमें ऑयल स्टोर होता है, जिसको हम क्रश करके ऑयल निकाल सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं उनमें भी ऑयल जो है वो स्टोर होता है और उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑयल उसमें से निकाल के। प्लांट्स जो हैं वो विटामिन्स भी बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, और विटामिन्स जो है वो किस किस में मिलते हैं हमको, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, इन सभी में हमें विटामिन्स मिलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। इसके बाद हम आते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। ये जो प्रीवियस वाला टॉपिक था वो था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे, जिसका एग्जाम्पल था प्लांट्स, जो कि हमने देखा। अब है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें ऐसा होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं वो आएंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन नहीं होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल नहीं है तो ऑफ कोर्स वो अपना खाना खुद नहीं बना सकेंगे, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी हैं जो कि फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे तो 3 टाइप का होता है प्लांट्स में। अब ऐसा है कि उसमें से जो 3 पार्ट्स हैं उसका फर्स्ट पार्ट अभी हम देखेंगे इसमें, जो है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद तो वो बना नहीं सकते, लेकिन वो अपना न्यूट्रिशन किस में से लेंगे, डेड और डीकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स में से लेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो कि मर गए हैं या फिर सड़ रहे हैं, उसमें से उसके ऊपर वो ग्रो करके और अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, वैसे तो वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, और ऐसे प्लांट्स को हम सेप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर कैसे होगी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द नॉन ग्रीन प्लांट्स obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprotrophic nutrition। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है प्लांट्स का या एनिमल्स का उसमें से लेते हैं, उसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट्स जो कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, ऐसे प्लांट्स को हम सेप्रोफाइट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पाइप एंड कोरल रूट, दोनों के मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाए हुए हैं, इंडियन पाइप एंड कोरल रूट के। दोनों ही देखिए आप, दोनों में आपको लीव्स नहीं दिखाई देंगे, ये वाइट कलर के हैं और ये बिल्कुल वाइट नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा वाइट कंटेंट है, बट लीव्स नहीं है, और लीव्स नहीं है तो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं और इसीलिए वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं।
The roots of the saprophytes contain organisms called fungi. The fungi, like mushrooms, secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a liquid that is used as nutrients by non-green plants. अब वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं उसका आपको वे बताया गया है. जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो कि हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं. हमने देखा ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनको हम फंजाई कहते हैं. ये फंजाई जो हैं वो जैसे कि मशरूम्स आपने देखी होंगी, ठीक है, वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, प्रोड्यूस करते हैं और डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर प्रोड्यूस करके क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड में, ठीक है. और ये जो लिक्विड है एज अ न्यूट्रिएंट कौन लेगा, कौन यूज करेगा, नॉन ग्रीन प्लांट्स यूज करेंगे. तो फंजाई जैसे कि मोल्ड्स हैं, मशरूम है, यीस्ट है और बैक्टीरियाज हैं, ये सारे सेप्रोट्रोफ्स बोले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं. फंजाई जो है वो पहले प्लांट्स में गिना जाता था, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर पाए गए जो कि प्लांट्स से अलग हैं, ठीक है, इसीलिए उसे हम प्लांट्स में कंसीडर नहीं करते हैं. वो क्या करते हैं, वो अपने दे फॉर्म एन एंटायरली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो पूरी एक अलग कैटेगरी बनाते हैं, एक पूरा अलग किंगडम है उनका, सेपरेट किंगडम है जिसमें हम फंजाई को रखते हैं. तो इस तरीके से अब वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताना चाहूंगी, कोर्स में नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी. जैसे कि फंजाई जो है वो क्या है कि प्लांट्स वैसे क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, बट फंजाई जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज नहीं करती है, ठीक है. प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करती है ना. इस तरीके से ऐसे कुछ और भी रीजंस हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई में प्लांट्स के नहीं पाए गए, इसीलिए उसको प्लांट के किंगडम से हटाकर और एक अलग ही किंगडम, सेपरेट किंगडम दिया गया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज का ये टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे. बाकी के जो आगे के टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है. तब तक के लिए आपको एक वर्कशीट दी जाएगी जो कि आपको सॉल्व करनी है. आपको उसके साथ साथ जो है वीडियो तो आप देखेंगे ही, और उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक के पेजेस जो हैं वो भी मैं भेज दूंगी, जिसकी मदद से आप वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.